गवर्नेंस इज नॉट हैविंग एनी एग्जैक्ट और फिक्स डिफिनीशन। गवर्नेंस की कोई भी फिक्स या स्थिर परिभाषा नहीं है। Definition of governance keep changing with time, situation and other factors related to the governance. गवर्नेंस की परिभाषा फिक्स नहीं है, ये चेंज करती रहती है समय के अनुसार, वक्त के अनुसार और अन्य फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ये। बट यूनाइटेड नेशंस हैज गिवन ए वेरी सिंपल definition of the governance which I would like to mention over here. As per the United Nations definition, governance is defined as decision making and the process of implementing the decision taken. कोई निर्णय लेना और उस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया को गवर्नेंस कहते हैं। दिस सिंपल डिफिनीशन इज गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इट इज ऑलमोस्ट ओके टू अंडरस्टैंड द word governance, but it keeps changing, and I would like to discuss one more definition: the process of decision making and the process by which decisions are implemented. Already I have told regarding this. Governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance. As I discussed, to know the type of governance, merits and demerits of different type of governance, and different definitions of the governance, again I will request you all, please approach the search engine Google, put the word only governance, you will get all the details. Since governance is a very complex and complicated issue and it varies with time and all that, so it has a very deep and very wide coverage in literatures. So I would like to request you all again, please give some time to understand governance by with the help of searching engine Google. Now next question, next point is the who is responsible for the governance? Who is responsible for the governance? The answer is government. The answer is government. In India, there are 8 types of governments. In India, there are 8 types of governments. Before going to explain the government, type of government, I would like to mention the definition of the government. Like governance, there is no exact definition of government also. It changes. There are different type of governments. Every type of government has its merits and demerits. A simple definition I would like to mention here. Government is the collection of people, a body that is interested with the work to govern a state, country, nation, or political units present in the country. This is a simple definition of the government, and there are many definitions for the governments. So again, I would like to request to know different type of the governments, their respective merits and demerits, and other details regarding different type of governance. We will have to approach the search engine Google and just put the word government. You will get much more information to get the more details regarding the government. Now next point is why we should know the government. हम गवर्नमेंट को क्यों जाने, क्या आवश्यकता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को जानने से हमें क्या फायदा होगा. दिस इज द बेसिक विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग, व्हाई वी हैव मेनी गवर्नमेंट्स. पहला क्वेश्चन है कि हमने गवर्नमेंट ये बनाई क्यों. ये 8 तरह की जो गवर्नमेंट इंडिया में है, हम इन्हें क्यों बनाए हैं, इसकी आवश्यकता क्या है. हम हर 5 साल में चुनाव कराते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी ऊर्जा खर्च होती है, ये सब गवर्नमेंट बनाने का मकसद क्या है. गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
जो जॉब है वो वेलफेयर स्टेट स्थापित करना। व्हाट डज इट मीन? 8 प्रकार की जो इंडिया में सरकार है वो रातों दिन हमारा विकास करती है, हमारा जो है हमें खुशहाल बनाती है, हमारे जिंदगी में रिचनेस लाती है, हमें हमारे वेलफेयर के लिए रातों दिन काम करती है। ये 8 प्रकार की सरकार। कैसे? ये जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, 8 प्रकार की सरकार डे एंड नाइट डिपार्टमेंट्स में सोशल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये सोशल प्रोडक्ट क्या होते हैं? सोशल प्रोडक्ट वो प्रोग्राम होता है, प्रोजेक्ट होता है, आइडिया होता है, जिसके माध्यम से 4 से ज्यादा सोशल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो फ्री में आम जनता को बेचते हैं। और क्या ये सरकार फ्री में ये सोशल प्रोडक्ट बेच के पाना क्या चाहती है? वेलफेयर स्टेट पाना चाहती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ आउटकम, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। फ्री में दे करके वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना करने का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको प्राप्त करना चाहती है इन द प्रॉफिट। अब हम सरकार को क्यों जाने, मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आएगा कि सरकार को जानना क्यों जरूरत है। देखिए, सरकार हमारे हर एक्टिविटी, हमारे हर स्टेप, हमारे हर काम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विजिबली और इनविजिबली इन्वॉल्व है। ये हमारे हर गतिविधि को रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है और कोऑर्डिनेट करती है। हमारे हर एक्टिविटी में इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृश्य में या अदृश्य रूप से हमें इसका हमारा बहुत क्लोज रिश्ता है। हमारा, मैं तो इसको दूसरे तरीके से कहता हूं कि जो रिश्ता हमारा हमारे माँ बाप से है, उससे बड़ा, उससे ज्यादा घनिष्ठ, उससे ज्यादा क्लोज रिश्ता हमारा सरकार से है। अभी मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ। हमारे माँ बाप क्या करते हैं? हमारी सेवा करते हैं। हमारे बाप हमें चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम जीवन भर खुशहाल रहें। माने हमारे बारे में वो अच्छा अच्छा सोचते हैं। यही तो हमारे बाप और माता पिता, हमारा एक जो बेसिक रिलेशन यही है ना। इसी तरह से ये सरकार 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना करके फ्री, जैसे पिताजी भी आपकी कोई सेवा करते हैं, पैसा नहीं लेते, वैसे ये सरकार भी फ्री में माँ बाप की तरह आपको 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना करके आपको धनी बनाना चाहती है, आपको संपन्न बनाना चाहती है, आपको खुशहाल देखना चाहती है। तो माता पिता की तरह ये सरकार की भूमिका अदा करती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सरकार जो है हमारी सेवा केवल जिंदा रहते वक्त ही नहीं करती है, जिंदगी में आने, जन्म लेने के पहले भी हमारी सेवा करती है और मरने के बाद भी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं सरकार का हमारे जीवन में कैसे इंटरमिंगलिंग है, कैसे ये रेगुलेट करती है, कैसे वी आर क्लोज, इसका कैसे हर काम में इन्वॉल्वमेंट है, मैं कुछ उदाहरण देके अपनी बात को, अपने पॉइंट को साबित करूंगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी हैं, वो कुछ एक काम करते हैं जिससे आवाज निकलता है और पोल्यूशन होता है। अगर मैं जाकर के उनसे मना करूं कि साहब ये काम बंद कर दो, तो वो नहीं बंद करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? इसलिए नहीं बंद करेंगे क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। ठीक है, अब आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और आपको रात में या दिन में पोल्यूशन हो रहा है, आवाज आ रही है, आपके लिए तकलीफ है। अगर आप जाकर के उनको मना करें, लड़ाई झगड़ा कर दें, तो क्या होगा? तुरंत मामला थाने में जाएगा, अथॉरिटी के पास जाएगी। पिक्चर में कौन आया? सरकार। थाना आया, पुलिस आया, अथॉरिटी आई। आई कि नहीं आई? देखो दिख रही है, आ गया। या इसका दूसरा तरीका है, आपके कहने पर वो नहीं मान रहे हैं, यू अप्रोच टू द अथॉरिटी, यू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू गो टू द एसडीएम, डीएन एंड एनी अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी, गिव एन एप्लीकेशन कि हमें ये तकलीफ है। उस एप्लीकेशन पे अथॉरिटी उनको बुलाएगी और मना करेगी कि ये काम मत करो, ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम है। तो जैसे आप एप्लीकेशन देने जाएंगे इस काम के लिए, किसके यहाँ जा रहे हैं? सरकार के यहाँ।
तो आपके ये काम में देखिए सरकार दिख रही है। एक दूसरा उदाहरण, आप रोड पे जा रहे थे, रोड पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा है, ब्लीडिंग हो रही है और गाड़ी ने टक्कर मार के भाग दी। हम सबके मन में भावना होती है मदद करने की। अब आपको मन में आ गया इसको जल्दी ले चलो और इसकी दवाई कराओ, अदरवाइज इसके साथ कैजुअल्टी हो सकती है। आप क्या करेंगे? तत्काल एम्बुलेंस 108 112 जो भी नंबर है, मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, आप फोन मारेंगे। आप फोन किसको मार रहे हैं? एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस क्या है? सरकार है। आपके मन में ये भावना जो आई मदद करने की, आप उस मदद को, आपकी अपनी भावना को लागू करने के लिए किसको फोन करेंगे? एम्बुलेंस को। कौन आ गया? सरकार आ गई। अब आप मान लीजिए अपनी गाड़ी से लेके, आप कार से जा रहे थे, गाड़ी में बैठाए लेके गए, तो कहाँ ले जाएंगे? सरकारी अस्पताल में। कहाँ पहुंचे? सरकारी अस्पताल में। फिर सरकार के यहाँ पहुंचे। यहाँ सरकार विजुअली हमारी आपकी मदद या हमारे एक्शन को रेगुलेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए दिख रही है। यही बात तो मैं कह रहा था। यहाँ तो ये तो विजुअल है। मैं एक ना इनविजिबल या इनडायरेक्ट हाउ गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग आवर ऑल एक्टिविटीज दैट आई वुड लाइक टू प्रूव। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप रात के 12 बजे निकलो, कभी भी जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। बाहर गाड़ी पड़ी रहती है, रात भर कोई चोरी नहीं हो रहा है, कुछ भी करिए। मेरे बगल में दूसरा थाना है। उस एरिया में क्या है कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन खराब है, क्योंकि वहां का थाना, वहां के अधिकारी, दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी प्रॉपरली। अब दोनों की तुलना करिए। जो हमारा एरिया जहां रामराज टाइप का है, जहां सुशासन है, गुड गवर्नेंस है लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो रहा है कि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कौन कर रहा है। ये माहौल किसने दिया? किसने दिया? जो दिख नहीं रहा, गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट कौन? जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनी है, उनका इतना बढ़िया मैनेजमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर इज परफेक्ट। बट इन द अदर एरिया व्हाट इज हैपनिंग? The law and order is not good because the officers in that area is not discharging their duties properly. अब देखिए यहाँ इनडायरेक्टली जो हमें फायदा मिल रहा है, रात भर गाड़ी बाहर खड़ी है, रात के 12 बजे 1 बजे निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो माहौल मिल रहा है गुड लॉ एंड ऑर्डर का, प्रोडक्ट का, ये हमें दिखाई नहीं देता। ये इनविजिबल गवर्नेंस है, ये सरकार की इनविजिबल सेवा है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो इनविजिबल है और कुछ विजिबल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे हर सिटीजन का हर एक्टिविटी, हर कार्य, हर स्टेप इज गवर्न्ड बाय द, regulated by the, coordinated by the, facilitated by the government, visually or invisibly। ये मेरा कहना था। मैंने ये 2-3 एक्सीडेंट का उदाहरण, पड़ोसी का उदाहरण, लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण दे करके अपनी इस बात को साबित करें। तो जब हमारी हर गतिविधि, हमारा हर काम, हमारा हर एक्शन सरकार के साथ कदम से कदम मिलके चल रहा है, तो क्या हमें सरकार से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार के बारे में हमें नहीं जानना चाहिए? क्या हमें सरकार के पास नहीं जाना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर है जाना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। दोस्ती नहीं, बहुत जबरदस्त दोस्ती करना चाहिए सरकार से, बहुत अंतरंग दोस्ती करना चाहिए सरकार से। और सरकार के प्रति रिस्पेक्ट, भाव, सम्मान वही होना चाहिए जो हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। माता पिता भी हमें फ्री में सेवा देते हैं कि हम, हमारा तरक्की हो, हम खुशहाल रहें, हम धनी हो जाएं, मतलब जितनी भी। माता पिता कभी भी अपने किसी बच्चे को नहीं चाहते उसका कोई भी छोटा सा भी नुकसान हो। लाइकवाइज गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग सेम थिंग। गवर्नमेंट कभी भी नुकसान के बारे में सोचती ही नहीं किसी का। तो गवर्नमेंट इज पैरेलल टू माता पिता, मदर एंड फादर। एक बात, अभी मैं कुछ देर पहले एक बात ये कर रहा था कि माता पिता की भांति की तरह गवर्नमेंट हमारी सेवा केवल जिंदा रहने पर ही नहीं करती है, हमारा सेवा उसके पहले भी करती है और बाद में भी करती है। कैसे? जब हम माँ के पेट में पलते हैं, हर आदमी अपने माँ के पेट में पलता है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम लोग माँ के पेट में पलते हैं
तो मेडिकल विभाग, ICDS विभाग, इनकी ड्यूटी है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को ये क्या करें, हर प्रेग्नेंट लेडी को अप्रोच करें और मदर को जो प्रोटोकॉल है उस पे लागू कराएं कि आयरन की गोली खाओ, क्या खाना खाओ, कैसे बात करो, कैसे रहा। देयर इज ए मेटिकुलस प्रोटोकॉल ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट ICDS। क्यों? जिससे कि जब बच्चा 9 महीने के बाद माँ के पेट से निकल के बाहर आए तो उसका एक मानक होता है, बच्चे का एक मानक होता है कि इतना वजन हो, इतनी हाइट हो, उसमें कोई डिफॉर्मिटी ना हो, उसमें कोई अंग भंग ना हो, एक अच्छा नागरिक के रूप में वो पैदा हो, उसके कंप्लीट हो, जो एक मानक है। इसलिए सरकार करती, मतलब कि जब हम पैदा नहीं हुए उसके पहले 9 महीने माँ के गर्भ में पल रहे थे, तभी से सरकार सेवा करना शुरू कर देती है। अब हम पैदा हो गए, प्राइमरी स्कूल का वजीफा, मिड डे मील, इंटरमीडिएट का वजीफा, मिड डे मील, बहुत बीमार हो गए, सरकारी अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड, बिजली, पानी, सफाई। देयर आर मोर देन 100 सोशल प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द 8 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक, अब पैदा होने के पहले सरकार सेवा कर रही थी, पैदा हो गए जब तक आप जिंदा हैं तब तक सेवा कर रही है। सरकार मरने के बाद भी सेवा करती है। कैसे? इसका उदाहरण सुनिए। श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट के पास एक श्रम बोर्ड है और उसमें बहुत सारा पैसा है। सारे स्टेट में श्रम बोर्ड है, 20-22 स्कीम है और उसमें 2-4 स्कीम ऐसे है कि जब कोई लेबर की डेथ होती है तो उसके जो हमारे यहाँ जो रिलीजियस एक्टिविटी, उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के जो हमारी मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से जब हम डिस्पोज करते हैं तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। उसके लिए सरकार श्रम बोर्ड के पास स्कीम है, पैसा देती है, एक बात। और जब वो लेबर डेथ हो जाती है तो उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके परिवार होता है, वो बर्बाद ना हो, उनको दिक्कत ना आए, चलने के लिए साइकिल खरीद के दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब तो उत्तर प्रदेश के हर मंडल में बहुत बड़ा नवोदय टाइप का रेजिडेंशियल स्कूल हम लोग खोलने जा रहे हैं। अभी मैं बांदा में था तो जमीन दे करके आया जिस पर बनेगा, उसका बड़ा अच्छा बता रहे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसका अच्छी खासी 20-25 करोड़ ऐसे कुछ है उसकी लागत रेजिडेंशियल। तो मरने के बाद भी ये सरकार हमारी सेवा करती। हमने क्या कहा, सरकार माता पिता की भांति जिंदा रहने के वक्त, जिंदगी के दौरान ही नहीं, जब हम अपनी माँ के पेट में रहते हैं, पलते हैं, तब भी सेवा करती है और मरने के बाद करती। जो सरकार हमारे लिए इतना काम करती हो, क्या हम उस सरकार को नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। अब तक मैं 12-13 यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर इस तरह से इसी टॉपिक पे दे चुका हूँ। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है क्योंकि ये सब बेसिक बातें लोगों को पता नहीं है। अब मैं अगला मेरा टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे प्रोफेसर मैनेजमेंट के जब मैं उन्हें टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे बताता हूं तो लोग कहते हैं साहब आज तक तो हमने ये सुना ही नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी, नहीं सुना। हमारे यहाँ 8 टाइप के गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ 8 टाइप की गवर्नमेंट है। पहली गवर्नमेंट है भारत सरकार, और भारत सरकार को जानने के लिए आपको केवल मैं एक साइट बता रहा हूं, आप वहां जाइए और पढ़िए, जरूर जानना चाहिए। www.india.gov.in। आई एम रिपीटिंग अगेन, www.india.gov.in। अरे कुछ ना आए तो गूगल पे लिख दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या आपको ले जाकर के यहीं पे रोक देगा। उसके बाद आप डिटेल में इसके बारे में पढ़िए, जितना डिटेल। तो ये भारत सरकार पहली सरकार हो गई 8 में, नंबर 1 सरकार। फिर राज्य सरकार होता है, राज्य, हम उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आपको जानना है तो क्या करेंगे आप, इसका भी अपना साइट है, क्या है, www, वहां इंडिया की जगह है यूपी लिख दीजिए, www.up.gov.in। अब ये शाह जी हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं, तो अब वेस्ट बंगाल के बारे में तो कुछ नहीं, यूपी की जगह WB कर दीजिए, वेस्ट बंगाल। एमपी सरकार के जगह के लिखने के लिए MP कर दीजिए, www
www.mp.gov आपको पूरा जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में मिल जाएगा। ये दूसरी सरकार, अभी 6 सरकार और है, 3 अर्बन गवर्नमेंट्स एंड 3 रूरल गवर्नमेंट्स। अर्बन गवर्नमेंट में पहली गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और उसके नीचे नगर पालिका परिषद होती है और उसके नीचे नगर पंचायत होता है। ये 3 अर्बन गवर्नमेंट है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और उसी जिले में जो छोटे छोटे शहर होते हैं आबादी के हिसाब से उसमें नगर पालिका परिषद होता है और उससे छोटा शहर उसको नगर पंचायत। इसके अपने मानक है, उसी मानक पर यह तय होता है। हर जिले में नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, ये तो होता ही है। और बड़े बड़े शहरों गवर्नमेंट, देयर आर 3 रूरल गवर्नमेंट्स। जिला पंचायत, जिला पंचायत पहला रूरल गवर्नमेंट है, दूसरे नंबर की देहाती गवर्नमेंट है। विकास खंड का एक बोर्ड होता है जिसके ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक की गवर्नमेंट। और सबसे छोटी और सबसे जमीनी सरकार होती है गांव सभा, जिसका मुखिया प्रधान होता है। कहीं कहीं पे सरपंच, एमपी में सरपंच कहते हैं। तो 3 ये शहरी सरकार, 3 ये देहाती सरकार, 6 और उत्तर प्रदेश सरकार मतलब राज्य सरकार 7 और भारत सरकार 8। ये 8 सरकार क्या करते हैं, हमारी सेवाएं करते हैं। रात दिन सोशल प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम के रूप में, आइडिया के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में, और उसको फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, कलकत्ता में या आप दिल्ली में आप लोग रहते हैं, दिल्ली में अगर आपके रोड, आपके घर के रोड के सामने कोई जानवर मर जाए और बदबू करने लगे 2 दिन बाद, तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुरंत आप फोन मिलाएंगे किसको? अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, दिल्ली के उस एरिया के। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? सरकार है। अभी हम बताए कि शहरी सरकार का एक प्रकार है। तत्काल वहां ये व्यवस्था होती है, उसका पूरा सिस्टम है, प्रोटोकॉल आएगा, उसको सफाई करेगा, इवन आपके रोड की धुलाई करेगा, वहां कुछ केमिकल भी डालेगा जिससे बीमारी ना फैले। आप कहाँ पहुंचे? सरकार के पास पहुंचे। सबसे छोटा गांव में चलो, गांव में कोई रोड है जिस पर बहुत सारे लोग निकलते हैं और उस पर कभी बरसात हो गया तो पानी जमा हो गया, दिक्कतें हो रही, तो क्या करेंगे? अगर उस रोड का बनवाना है तो कहाँ जाएंगे आप? प्रधान जी और वहाँ का जो है सचिव है, लेखपाल है, उसके पास जाएंगे कि साहब देखिए इस रोड पे बहुत लोगों की गाड़ी फंस रही है, दिक्कत हो रही है, आम रास्ता है, इसको बनवा दो। तो आप कहाँ गए? गांव सरकार के पास। बनवाएगा कैसे? गांव सभा का फंड होता है और उस फंड से वो बनवाएगा। तो मैंने आपको, ये 8 सरकार होती है, ये इसका काम वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द 8 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। तो अभी तक हमने कहां से शुरू किया? सबसे पहले तो मैंने आईसीटी की बात करी, आईसीटी, फिर गवर्नेंस पे बात किया, फिर गवर्नमेंट पे बात किया। हम गवर्नमेंट के बारे में क्यों जाने, क्या आवश्यकता है, उससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, इसका उदाहरण मैंने दे करके आपको समझाने की कोशिश की। और उसके बाद हमने 8 टाइप के गवर्नमेंट की बात करी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, हाउ टू डिफाइन गुड गवर्नेंस, जिसको हिंदी में सुशासन कहते हैं। देश को तरक्की पे ले जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, हर आदमी के चेहरे पे खुशहाली लाएंगे, बट सुशासन है क्या? हाउ टू डिफाइन, सुशासन की परिभाषा क्या है? मैं आपको बता दूं, मुझे सुशासन की परिभाषा ढूंढने में पीएचडी में 1.5 साल लगे थे। अब वो ढूंढते ढूंढते यूनाइटेड नेशंस की एक परिभाषा 2 पन्ने की मिली। तो what is the definition of good governance? We have defined the governance. United Nations has defined the governance as the process of decision making and the process and steps of implementing that decision taken. We need to add word good before governance in order to get the good governance. One thing, to define good governance, to get the word good, we need 8 indicators, 8 dimensions, 8 prescription defined by the
United Nations, and that 8 characteristics, that 8 dimensions is widely accepted, widely used and widely practiced by the globally. वो 8 जो characteristic यूनाइटेड नेशन ने बताया है. One more thing I would like to mention over here, that good governance is an ideal preposition, ideal condition, and we all know we never get ideal condition. We can't reach ideal conditions. We approach towards, we can go nearer to the ideal condition, but we cannot exactly land to the आइडियल कंडीशन. ये आइडियल कंडीशन है, ये प्राप्त नहीं हो सकती, उसके नजदीक आ जा सकते हैं. नाउ व्हाट आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशंस prescribed by the United Nations to define the good governance? First is participation, second is follow rule of law, third is transparency, and fourth is responsiveness, and fifth is consensus oriented, sixth is equity and inclusiveness, and seventh is effectiveness and efficiency, and eighth is accountability. These are the 8 characteristics defined by the, prescribed by the United Nations, or it is widely accepted and practiced globally. पूरा विश्व इसको यूज करता है. To understand these things, I would like to give an example, and through that example I would like to explain all parameters, most of the parameters. मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं कि एक स्कूल है और वो MBA के एडमिशन में अपना फीस बढ़ाना चाहता है. 1 लाख फीस है और चाहता है कि फीस बढ़ा करके और वो 1.5 लाख कर दे. उसने क्या किया, 1.5 लाख लेकर के मैनेजर साहब ने डिसीजन लेकर के और नोटिस चस्पा कर दिया कि अगले साल जो फीस लगेगी वो 1.5 लाख होगा. एक तो ये देखिए, उन्होंने डिसीजन लिया और नोटिस बोर्ड और ब्राउचर वगैरह जो भी उनके लीफलेट वगैरह उसमें डाल दिया. दिस इज वन गवर्नेंस. लेकिन इस तरह के गवर्नेंस में, इस तरह के डिसीजन लेने में गुड शब्द नहीं जुड़ा. ये गुड गवर्नेंस वाला पोर्शन नहीं है, ये पुअर गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस. अब इसी चीज को, इसी डिसीजन को हम दूसरे तरह से लेते हैं. देखिए, जिससे कि वर्ड गुड जुड़ जाएगा विथ 8 पैरामीटर्स, दीज 8 इंडिकेटर्स. सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या किया, एक नोटिस दिया, नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया, भाई हम 1 लाख से 1.5 लाख फीस बढ़ाना चाहते हैं. इस तारीख तक इस ईमेल पर, इस कमरे में आप अपना सुझाव, आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दीजिए और 15 दिन या 21 दिन का समय दे करके, और सुझाव, ऑब्जेक्शन, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी लाए इस डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, इस गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाए. पहले क्या था, गुपचुप तरीके से कर लिया. ट्रांसपेरेंसी इज वन इंडिकेटर ऑफ गवर्नेंस. ठीक है. अब आप करोगे तो बहुत सारे सुझाव देंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन देंगे, उस पर चिंतन मनन करिए, उसको देखिए. 1 पॉइंट, एक इंडिकेटर हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट, इसके बाद आप ये देखिए कि ये डिसीजन लेने से कौन कौन से लोग अफेक्ट होंगे, प्रभावित. हु आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन बाय इंक्रीजिंग दिस फी फ्रॉम 1 लाख टू 1.5 लाख. तो उसमें स्टूडेंट अफेक्टेड होगा, उसका गार्जियन अफेक्टेड होगा, टीचर्स अफेक्टेड होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड होगा. क्या, बहुत सारे बैंक भी अफेक्टेड होंगे कि जो 1 लाख रुपया लोन देते हैं, जब अगले साल हो जाएगा कहेगा ये लोन हमें 1.5 लाख दो, तो बैंक वाला कहेगा नहीं, 1.5 लाख नहीं देंगे, ये तो 1 लाख था, 1 ही देंगे. तो इस, अगर लेटर सपोज कि there are 8 participant or stakeholders who are going to get affected by this decision, तो इन 8 लोगों की बैठक बुलाइए. आप 8 की बैठक बुलाइए और थारो डिस्कशन करिए. और वो जो ऑब्जेक्शन आपको मिला था, सुझाव मिला था, जो आपने इस्तेहार देके मांगा था, उस पर भी डिस्कस करिए. और सबके 8 के डिस्कशन, थारो डिस्कशन, डिलिब्रेशन के बाद एक आम सहमति बनाइए क्या होना चाहिए.
मेजॉरिटी से। 8 लोग हैं तो कम से कम 5 लोग सहमत हुआ। अब मान लीजिए 5 लोग सहमत हैं कि साहब ठीक है, मेजॉरिटी ये कहती है कि इसको 1.25 लाख कर दीजिए, 25,000 बढ़ा दीजिए, तो ठीक है, मेजॉरिटी से डिसीजन हुआ। अब आप देखिए इसमें पार्टिसिपेशन का जो इंडिकेटर है बढ़ गया। 8 लोग डिसीजन लिए, पहले 1 ले रहे थे, तो पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ, सब ठीक हुआ, तो पार्टिसिपेशन हो गया दूसरा जो इंडिकेटर है। और आपने आम सहमति से लिया, कॉन्सेंस ओरिएंटेड एक कैरेक्टरिस्टिक है, आम सहमति कॉन्सेंस ओरिएंटेड, तो आप वो भी वाला इंडिकेटर कवर हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी डिस्कस किया, पार्टिसिपेशन डिस्कस किया और कॉन्सेंस ओरिएंटेड किया। अब और अगला देखिए, कोरोना में सरकार ने कहा कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, तो आप फीस बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फी। व्हाट इज द सिचुएशन? यू आर वायलेटिंग द रूल्स। और अगर गुड गवर्नेंस क्या कहता है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे रूल का उल्लंघन हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, रूल का उल्लंघन हो रहा है, तो ये गुड गवर्नेंस नहीं होगा अगर आप फीस बढ़ाएंगे, ये बैड गवर्नेंस होगा। तो रूल ऑफ लॉ का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ का हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, पार्टिसिपेशन हो गया, कॉन्सेंस ओरिएंटेड हो गया, रूल ऑफ लॉ। 4 इंडिकेटर हमने इस उदाहरण से कवर किए। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने ये फीस बढ़ाने का नोटिस पहले वाले कंडीशन में डाला और नोटिस बोर्ड पे छपा किया कि अगले साल, अगले दिन सारे स्टूडेंट आकर के धरने बैठ गए। ये क्या है भाई, हम तो 1 लाख रुपया देते वही देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, नारेबाजी हो गई। तो ये इफेक्टिव हुआ? नहीं इफेक्टिव हुआ। ये आपका जो डिसीजन है ये इफिशियंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, लैंड ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो ये इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी वाला मामला उलझ गया, रूल ऑफ लॉ वाला मामला उलझ गया। तो ये इफेक्टिव नहीं, ये इंडिकेटर आपने इवेल्युएट कर दिया। और एक इंडिकेटर ये है कि इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब ये होता है कि इससे जितने प्रभावित लोग हैं सबको इंक्लूड करो, सबका मत लो, सबकी राय मशवरा करो। तो जब आपने सबके साथ बैठे ओरिएंट किए तो सबको इंक्लूड कर लिया आपने। पहले आप अकेले किए थे, 7 बाहर थे, 1/8 था, अब आपका 6/8 नंबर मिल गया, तो इंक्लूसिवनेस वाला फैक्टर आ गया। ठीक साहब। और हमारी आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड है, जब हम सबको सारे स्टेक होल्डर के साथ बात करेंगे और सबको हम कन्विंस करेंगे हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या रीजंस है, तो हम अकाउंटेबल हैं उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से जब हम कोई भी डिसीजन लें तो इन 8 पैरामीटर पे उसको इवेल्युएट करें, वन थिंग, और वी ट्राई आवर बेस्ट टू इनहांस दीज ऑल 8 पैरामीटर्स इन टेकिंग द डिसीजन। पहले वाले बड़ा आसान था, अपना डिसीजन लिया, धीरे से नोटिस दिया। जब आप गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक को इन्वॉल्व करेंगे और उसको बढ़ा करके डिसीजन लेंगे तो दिक्कत भी आएगी, समय भी लेकर लगेगा, परेशानी भी होगी, लेकिन बहुत ही सॉलिड डिसीजन होगा, गुड गवर्नेंस होगा। तो ये गुड गवर्नेंस के 8 परिभाषा है, गिवन बाय द 8 इंडिकेटर्स है, डायमेंशन है, गुड गवर्नेंस आइडियल कंडीशन है, एंड इट इज नॉट बाय मी और एनीबॉडी, नन लेस देन अ बॉडी हु इज हैविंग 193 मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस। वन मोर थिंग, ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे आर नॉट इक्वली इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सबका प्रभाव बराबर है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कि हो सकता है कि कुछ गवर्नेंस ऐसे हो जिसमें 8 के 8 इंडिकेटर मिले, किसमें 7 मिले, कुछ में 5 मिले, ऐसा भी हो सकता है 8 के 8 इंडिकेटर ना मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट द गुड गवर्नेंस indicators. With a example, I tried to explain the details and complication of each indicator with the governance process through a example. Now, mixing all these, if we mix all these, we will reach to our destination, our topic, role of ICT in achieving good governance. क्या आईसीटी के आने से, डिजिटल इंडिया के करने से, ऑफलाइन को ऑनलाइन करने से गवर्नेंस बढ़ा है या नहीं बढ़ा?
गवर्नेंस इंप्रूव हुआ नहीं हुआ? तो आंसर इज यस, गवर्नेंस बढ़ा है, इंप्रूव हुआ है। और मेरे पीएचडी का जो आउटकम है वो भी यही है, क्या कि विद द इंक्रीज of use of ICT, governance has improved. We improved and we are moving towards good governance. ऐसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, पहले हम लोग जब बैंक में जाते थे 10 साल पहले, जब ऑफलाइन था, तो हम लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन में लगे रहते थे और तब हमें पैसा मिलता था। आज क्या हो रहा है, आप रात के एटीएम माइंडलेस बैंक ऑनलाइन हो गया है सब, रात को निकाल लो पैसा, दिन में निकाल लो, लाइन में नहीं लगना है। तो ये फायदा है। रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट का बनवाना, धीरे धीरे हम लोग, पहले जब देश आजाद हुआ तो पुअर गवर्नेंस था, पुअर गवर्नेंस से हम लोग गवर्नेंस की तरफ आए। अब हम लोग डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी गुड गवर्नेंस की तरफ पहुंचे नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एंड आफ्टर गुड गवर्नेंस देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट अंडर कंसिडरेशन। गुड गवर्नेंस के बाद वही रुक थोड़ी जाएंगे, रुकने वाले नहीं हम लोग, स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। गुड गवर्नेंस पाने के बाद पुअर गवर्नेंस से गवर्नेंस पे आए, गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस पे जा रहे हैं, गवर्नेंस के बाद स्मार्ट गवर्नेंस पे जाएंगे। उसके बारे में चिंतन मनन सब चीजें चल रही हैं, है ना। तो आपका ये एक उदाहरण है कि आईसीटी के आने से गुड गवर्नेंस बढ़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब हम लोग स्कॉलरशिप देते थे ऑफलाइन, तो मैनेजमेंट के लोग क्या करते थे, एक बच्चे का 4 जगह नाम लिख करके और 4 जगह स्कॉलरशिप निकाल लेते थे। और अब क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन हो गया। बच्चे के वो जो अपना क्या है, आधार कार्ड और मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दिया गया है, वो चाहे 75 जगह अप्लाई करेगा, उसे मिलेगा केवल एक स्कॉलरशिप। पहले 4 स्कॉलरशिप जाता था, तो कहाँ 400 जाता था, अब 100 जा रहा। करप्शन 3 टाइम्स कम हो गया। तो गुड गवर्नेंस बढ़ा है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक विद द इंक्रीज with the digital India, governance has improved. The role ICT is playing a positive role in improving the governance. This is all about. मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ पैंडेमिक का उदाहरण बताता हूँ कि गुड गवर्नेंस में, मैं शुरुआती दौर में मेरे पास फोन बहुत आते थे कि भैया पास बनवा दो, बड़ी दिक्कत हो रही, मैं वहां फंस गया, ये हो गया। तो मुझे लगा कि लोगों को पास को लेकर के बड़ी दिक्कत है, पास को लेकर के दिक्कत है। तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया पे हर जगह हूँ, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। मेरी एक सोशल साइट है makingyouhappy.org, अभी मैंने चैट में लिखा भी था, देख लीजिएगा। हमने लिख दिया कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे अप्रोच करें। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लिखने के रात में ही एक मैसेज आया गाजियाबाद से कि सर मेरी मदर डायलिसिस है, 70 साल की, अगर 2 दिन के अंदर मैं गुड़गांव ले जा करके डायलिसिस नहीं कराया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मेरी मदर के लिए। एंड ही रोट मी कि ही अप्लाइड with the Ghaziabad district administration and it was rejected. I told him you reapply on the ground of medical ground and attach some document and meet Sri Ajay Shankar Pandey ji, district magistrate, in my name. He went there, he got the pass and he took her mother for dialysis and her mother is okay. तो क्या हुआ, ये आईसीटी का कमाल है गवर्नेंस में, ना मैं मिला ना वो जानता है। एक बहुत बढ़िया और उदाहरण बताता हूँ। One day I got a message, Radhika Agrawal. She wrote me, sir, I am Radhika Agrawal. I am doing PhD from the United Nations University, Japan. My guide is a Bengali professor from West Bengal and his friend professor in Japan and friend's mother is stranded in Delhi. क्या मतलब, राधिका पीएचडी कर रही है जापान से, उसके जो गाइड है, गाइड के एक दोस्त प्रोफेसर है, वो भी बंगाली हैं, स्वामी चक्रवर्ती नाम है उनका, और
जो ये उनकी मदर जो है दिल्ली में, जिस दिन वो घर जाना था उसी दिन लॉकडाउन हो गया। और जो मदर है उनके दोनों बेटे प्रोफेसर है जापान में, दोनों बेटे प्रोफेसर जापान में, मदर दिल्ली में, और जाना है वहां 70 साल की मदर। तो हमने राधिका से कहा कि आप अपने गाइड से बोलो कि वो गाइड अपने मित्र प्रोफेसर से बोले कि मेरा ये नंबर बताओ, मुझसे कनेक्ट करो। उनका मैसेज आया, मैंने उन प्रोफेसर को कनेक्ट किया, दिल्ली के श्री रजनीश सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एडीएम है। हमने कहा तुरंत प्रोफेसर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इनके मदर का पास बनवाओ, इनके मदर को हम लोगों को भेजवाना है वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा समय लगा क्योंकि थोड़ा हाथ पाँच शुरुआती दौर में ज्यादा था, लेकिन हम दोनों को कलेक्ट किए और उनकी मदर को वहां भेजवाने में उनकी मदद की। अब आप सोचिए, रजनीश कहाँ, मैं कहाँ, राधिका कहाँ, राधिका के गाइड कहाँ, और गाइड के दोस्त कहाँ, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और विद इन 1 डे वी मैनेज्ड ऑल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आईसीटी एंड वी डोंट नो ईच अदर। अभी भी उनके सौमिक चक्रवर्ती साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दिस इज द ब्यूटी। एंड वन मोर थिंग, पैंडेमिक को लोग बुराई मानते हैं। मेरा एक सेंटेंस है, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए। मैं तो बहुत पुराना, जब से मुझे होश आया तब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये जो क्राइसिस आती है ये आपको धक्का देती है क्या? इट पुशेज यू टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। ये जो क्राइसिस है ये आपको झकझोर के रख देती है। इट पुशेज यू टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। ये आपको धक्का देती है और आपको दौड़ाती है, गो एंड मीट द अपॉर्चुनिटी। तो क्राइसिस गिव्स यू, फ्यूएल्ड यू, energized you to move you towards, to land you on the opportunity। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मैं अब तक 12, ये मेरा जो है 15वां वेबिनार है गुड गवर्नेंस पे, वाटर पे, वोकल फॉर लोकल पे, वेल न्यूट्रिशन पे हम लोग करते रहते हैं। जब किसी को पता लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, अपने अनुभव साझा करता हूँ। अब तक मैं 8 यूनिवर्सिटी में इसको, कल मेरे 2 यूनिवर्सिटी में थे, भोपाल का एक भाभा यूनिवर्सिटी है और लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, IIMHR जयपुर यूनिवर्सिटी, मथुरा में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे लोगों का हम लोग वेबिनार गुड गवर्नेंस पे कर रहे हैं। जो टॉपिक आपका है लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी गुजरात की 2 यूनिवर्सिटी को अगले सैटरडे संडे को करना, मैं छुट्टी में ही, जो छुट्टी का समय है उसी को मैं समाज के लिए डिवोट करता हूँ। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने लिए जीना चाहिए, अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 24 घंटा में आधा घंटा समाज के लिए जीना चाहिए, समाज के लिए डिवोट करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक, माय डिस्कशन, मेरा माय वेबिनार, ठीक है। और मैं आज आप लोगों से चाहूंगा कि मेरा सब, आई राइट HEERA, माई नेम LAL, हीरालाल IAS। आप हीरालाल IAS से ढूंढोगे, मैं आपको ट्विटर पे मिलूंगा, लिंक्डइन पे मिलूंगा, फेसबुक पे मिलूंगा, मैं आपको मेकिंग यू हैप्पी जो मेरी सोशल साइट है उस पर मिलूंगा। हम सभी लोग आपस में कनेक्ट हों, अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए जिससे अच्छा काम करने की एक्सीलरेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ जाए, खूब बढ़े, खूब ज्यादा से फैले, इसकी देश को जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। अगेन साहा जी, आपसे हमारी मुलाकात हुई, आप मुझे दिख भी रहे हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और मिस्टर अभिषेक हमारे मित्र भी हो गए हैं। अब आप लोग सभी लोग मित्र हो गए, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मित्र हैं मेरे। आज से सबकी दोस्ती हो गई और हम सभी लोग एक गुड गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म पे मिल करके टेंडम में काम करेंगे और गुड गवर्नेंस के खुशबू को पूरे देश में और विदेश में फैलाएंगे और जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें अपना योगदान देंगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू साहा जी, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर। थैंक यू। एनी क्वेश्चन इफ एनी? जो भी पार्टिसिपेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो मैं चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेज देंगे, एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे। तब अभिषेक जी नमस्कार।
जी नमस्कार जी, संदीप जी बोलिए, क्वेश्चन पूछिए सर। जी जी अभिषेक जी, मेरा सबसे पहले थैंक यू सर। और हीरालाल सर ने इतना इंसाइट किया गुड गवर्नेंस के बारे में, और बहुत अच्छा लगा सुन के। और सबसे जो और अच्छा लगा सर का जो हेल्पिंग नेचर है, कि कौन किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी सर ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से और एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक दूसरे का हेल्प किया, वो बहुत अच्छा लगा। मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, गुड गवर्नेंस के टाइम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या हर्डल्स आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं? या गवर्नमेंट की तरफ से आता है या फिर हमारा सिस्टम मतलब पब्लिक की तरफ से आता है? ओके, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। रालेगांव सिद्धि में एक बुजुर्ग है, उनका नाम है अन्ना हजारे साहब, ठीक है। और वो मिलिट्री में नौकरी करते थे, ठीक है साहब। और नौकरी के बाद रिटायर हो गया। रालेगांव सिद्धि में एक पीपल का पेड़ था, छोटा सा एक कोठरी थी, वहीं रहने। उन्होंने सोच लिया कि मुझे अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है। और ड्राइवरी में उनको मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो, डंपर ड्राइवरों में जो सबसे खराब वाला ड्राइवरी का जो सीट होता उस पर। और अन्ना हजारे ने देश में ही नहीं पूरे विदेश देश में एक लहर पैदा करी। देखो कहीं ना कोई हर्डल है, ये हमारे मन का एक दिक्कत है। बांदा जब मैं गया तो बांदा बुंदेलखंड का एक पार्ट है, वहां समस्याओं का अंबार है। और हमने कुछ नहीं किया। हमने देखो मैं नकल करता हूं अकल से। कैसे? हम ये पता है कि मैं कोई काम करूंगा पैसा मांगूंगा मिलेगा नहीं, तो मैंने वहां फार्मूला उठाया सुभाष पालेकर जी का, जीरो बजट फार्मिंग। मैं गवर्नेंस करता हूँ नो बजट आर लो बजट, लो बजट आर नो बजट। ऐसा काम करो जिसमें बजट की जरूरत ना हो। कहां से उठाया ये फार्मूला? माई स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इज based on 3 tricks and technology that I would like to highlight, and these are good things. पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं सबको इकट्ठा करता हूं। और ना उसमें कोई बड़ा है ना कोई ऊंचा है। मैं कलेक्टर था लेकिन मैं कभी नहीं कहता था मैं कलेक्टर हूं। हम सब बराबर हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं सब एक टेबल के चारों तरफ बैठो, सबकी कुर्सी एक तरह की होती थी। ऐसा नहीं कलेक्टर साहब वाली कुर्सी में कुर्सी सब बराबर करा देता था। तो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स पहला मेरा मंत्र है। दूसरा मंत्र है लो कास्ट आर नो कास्ट। और तीसरा मेरा ट्रिक है, कहते हैं ना हर आदमी के अपने ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स होते हैं। तो मेरा ट्रिक्स टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है। पहला पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, सेकेंड है लो कास्ट आर नो कास्ट, एंड थर्ड है कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स रिसोर्सेज एंड इनपुट्स। अब मान लीजिए मुझे कोई काम करना है तो वहां टेंट लगेगा, तो हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं सबके पास छोटा छोटा पैसा आईईसी का होता है, छोटा छोटा, कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख, कोई 50 लाख नहीं होगा। और आपको 10 लाख का काम करना है तो 10 लोगों को जुटा, 10 विभाग को जुटा लीजिए। हमने किसी से कहा तुम टेंट लगाओ, किसी से कहा कुर्सी लगाओ, किसी से कहा ये चाय पानी कर दो, किसी से कहा माइक लगा दो। कन्वर्जेंस किया, ठीक है, और कन्वर्जेंस कर। और वन मोर थिंग, जिस दिन जनता को और समाज को यह पता लग जाएगा कि आप ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं आती है। एक बात। दूसरी बात, अगर बाधा ना आए तो मजा नहीं आता है। बाधा ही आपके वर्क की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप सोचोगे कि कोई गलती हो रही है, आप उसे दूर करोगे क्या। मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था, मैं लेक्चर ले रहा था और मैं प्लास्टिक के बारे में भाषण दे रहा था, और कम से कम 1000 महिलाएं थी कि प्लास्टिक रिमूवल जो ये नारा प्रोग्राम चला था। और हमारे सीएमओ साहब ने आशा को प्लास्टिक में ही वो फोल्डर में दे दिया। एक आशा खड़ी हो गई वही, और कहा कलेक्टर साहब जो आशा मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती है वो आशा खड़ी हुई और लहराते हुए कहा कलेक्टर साहब आप ये कह रहे हो, देखो आपके विभाग ने ये प्लास्टिक में दिया। कोई दूसरा कलेक्टर होता है इसको निकालो, इसको नौकरी से निकाल दो, सस्पेंड कर दो इसको। मैंने कहा आशा इधर आओ, मैंने उसको स्टेज पे बुलाया, अपने बगल में खड़ा किया और मैंने उसे धन्यवाद दिया। और मैंने वही अनाउंस किया, और जाकर के पहले जब मैं वहां से गया तो पहले ये आदेश किया कि अब हमारे जनपद में कोई भी बैठक होगी उसमें जो सामान दिया जाएगा वो प्लास्टिक में नहीं दिया जाएगा, या जूट या कपड़े के बैग में दिया जाएगा। और उस
आशा को वही हमने प्रशंसा पत्र दिया। निंदक नियरे राखिए, उसने मेरे को कितनी बड़ी नसीहत दी। एक आशा जिसको हम समझते हैं ये कुछ नहीं जानती, सब कलेक्टर साहब ही जानते हैं, मेरी ये सोच नहीं है। हर आदमी जानता है, हर आदमी के पास अच्छाई है, जहां जो अच्छाई मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, पोस्ट, ऊंचाई नीचाई, टेक इट। मैंने उस आशा को लिया और इस पर बहुत जबरदस्त न्यूज बनी। मीडिया वालों ने लिखा कि एक आशा ने ऐसा क्वेश्चन दागा कि डीएम झांकने लगे अगले बगले। वो मीडिया वाले थोड़ा नमक मिर्चा लगाते हैं ना, डीएम झांकने लगे अगले बगले, लेकिन फिर उन्होंने उसको मतलब हेडिंग तो ये दिया, लेकिन न्यूज बड़ी, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन दोनों साथ मिल गया। तो दिक्कत आती है। एक पत्रकार लगातार मुझे 1.5 साल तक, मैं चाहे कुछ भी करता रहा, मेरी बुराई करता रहा। 99 पत्रकार मेरे तारीफ लिखते थे, एक पत्रकार आज तक का वो करता, और साल भर बाद वो मेरे पास आया, सेल्फी खिंचाया, शर्माते शर्माते। जब वो सेल्फी वाला फोटो डाला, सारे पत्रकार कहे डीएम साहब ने पटा लिया या कैसे पट गया, वो खुद ही मुस्कुरा रहा था। तो देखिए, विरोध तो होना चाहिए। विरोध को आप अच्छे, अभी जैसे हम लोग ये कर रहे थे तो कोई कुछ अनाप शनाप बोल रहा था। अरे भाई, मैं अभिषेक से यही कह रहा था, अभिषेक जब हाथी चलता है तो कुछ आवाज आती है ना, भूंकता उठते हैं कुछ लोग, कुछ आवाज आती है, और जब तक वो भूंकेगा नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि हाथी चल रहा है। ये हमने नहीं बनाया है, ये सृष्टि की देन है। कोई बाधा नहीं, अच्छे नियत से, अच्छी नीति से, अच्छे मनसा से काम करिए, रास्ते अपने आप बनते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ महाराष्ट्र से बाला साहब जी हैं। जी बाला साहब जी, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ सर जी प्रणाम, गुड इवनिंग सभी पार्टिसिपेंट्स को। सर मेरा नाम बाला साहब है, मैं अभी वास्तव में मुंबई में काम करता हूँ। मैं वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हूँ। तो बीच में भी अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होता रहता है। आपका जो पीएचडी के ऊपर जो था, आईसीटी यूजिंग गुड गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस, तो थीसिस है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ थीसिस को भी आपको। तो वैसे ही सर मेरा भी जो आपका जो मिशन है कि ये जो अपन गुड गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ चलेंगे, तो बेहद है कि बहुत ही एक अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्योंकि एक अपने जो एक साथी थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था अभी इन्होंने, संदीप शर्मा जी ने, कि 2 चीज़ें हैं, एक गवर्नेंस है, गवर्नमेंट जो चलाता है, और दूसरा एक पब्लिक है। तो आपने इसको बहुत ही हाईलाइटेड किया है कि जब तक पार्टिसिपेटरी नेचर नहीं होगा कोई भी चीज़ में, गवर्नमेंट और जनता के बीच में, तभी तक अपन कोई भी चीज़ आगे नहीं ले जा सकते। तो मेरा भी सर यही कहना है कि आईसीटी में भी क्या पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या हो सकता है पब्लिक को लेके। क्योंकि मैं बहुत बार जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बार ये जो अपना फसल का बीमा जो देना होता है वो ऑनलाइन करना पड़ता है। बहुत किसानों को पता ही नहीं है कि वो ऑनलाइन कैसे करें, कैसे पंजीकरण करें। फिर मेरे जैसे आप जब बाकी लोगों जैसे लोग होते हैं, फिर वो हटने लगते हैं, भैया 1000 रुपये दो, 1500 रुपये दो, आपका फॉर्म हम भरवा देंगे। तो प्लेटफॉर्म तो हम बनाते हैं और बेहद अच्छी तरीके से अपन उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीच में जब बहुत ही पार्टिसिपेटिव नेचर नहीं रहता है तो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें चालू होने लगती है। तो आपकी क्या राय है इसमें, किस तरीके से? तो और अभी मैं एक ये भी ऑब्जर्व किया हूँ कि अभी भी अपने सिस्टम में बहुत ही पुराने ख्याल के लोग हैं, ख्याल के इन द सेंस की टेक्नोलॉजी के बारे में। उनको एक मेल खोलना है तो 2-2 घंटा लगेगा एक मेल खोलने में। तो आपका क्या इसमें राय है कि किस तरीके से आगे जाके अपन किस तरीके से अच्छा तरीके से गवर्नेंस को ला सकते हैं आईसीटी में? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आपका दर्द है, ये मेरा नेक्स्ट दर्द है। मैंने पिछले अप्रैल में, इसी अप्रैल में मैंने पीएचडी पूरी की है। मैं अगेन आई एम गोइंग टू इनरोल इन डिलीट एंड माय टॉपिक ऑफ रिसर्च इज रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। जो आपका दर्द है, देखिए हमारे पास 1000 से ज्यादा सोशल प्रोडक्ट है, दिल्ली और लखनऊ में मिलता है, उसके बाद जिले में हम लोग भेज देते हैं डीएम साहब के पास, इसको फ्री ऑफ कास्ट हर सिटीजन को बेचो। देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्लान, जो आप बात कह रहे हैं, इस पर हम खुद ही कार्य योजना बना रहे हैं।
और मैं इसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं एक इसका मॉडल बनाने जा रहा हूँ। उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को अपना रिसर्च प्रपोजल भेजा, उनको बड़ा अच्छा लगा और वो हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगा, मेरा आप मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आप सभी लोग 95 नोट कर लीजिए, 953299 98213। आप मुझसे टच में आइए, मैं आपको उस ग्रुप में लेता हूं, क्योंकि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्लान बनाने जा रहे हैं उसमें हम जिले में हर विभाग से 2-2 रिसोर्स पर्सन तैयार करेंगे। इसकी पूरी एक मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा एक इस पर रिसर्च करने जा रहे हैं, एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। और गांव में संचार सेना, नाम संचार सेना रखा, भी नाम बदलेंगे उसको। 11 लोगों को हम लोग ट्रेंड करेंगे कि जिससे 1000 जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट है वो पूरा जानकारी उन 11 को देंगे, और वो 11 लोग रातों दिन गांव में इसको क्या करेंगे, सबको बताएंगे और इस प्रोग्राम, इसका लाभ गांव में ले जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो इस पर हम लोग काम करें। उसका रिसर्च प्रपोजल अभिषेक मैंने आपको भेजा था, वो आप किसी को भी शेयर कर दो, दैट इज नॉट एविडेंट, यू शेयर विथ ऑल माय रिसर्च प्रपोजल एंड एसओपी, सो दैट आप मेरे से आप क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आदमी हो यार, आप अच्छे आदमी हो, तो मुझसे भी जुड़ जाओ, आपका फायदा मुझे भी कुछ मिलेगा इस रिसर्च में, और मैं आपका मदद लेता हूं इसमें। हम लोग इसको डिजिटली, हाउ टू कनेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विथ फोकस इन अ डिस्ट्रिक्ट, दिस इज माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने बादा में 22 प्रोजेक्ट किए, 23 प्रोजेक्ट किए। जेल नंबर 1, मैं न्यूट्रिशन का बादा सुपोषण मॉडल, वाटर कंजर्वेशन पूरा भारत सरकार जानता है बादा मॉडल, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपके यहाँ फिल्म बनती है, आपने फिल्म बनाई थी एक दिन का मुख्यमंत्री, हमने एक प्रोग्राम चलाया एक दिन का अधिकारी स्टूडेंट के लिए, वो एक दिन डीएम बन जाता था, एक दिन सीडीओ बनाते थे, दिन भर हमारे साथ खाता था, देखता था, पढ़ता। तो वी डिड सो मेनी इनोवेशंस। लेकिन आप वाला ये जो है, देखो इसमें प्रोग्रेस हुआ है, चीजें बढ़ी हैं, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो मैं आपका दर्द समझ रहा हूं। अभी हम लोग 40% पहुंच पाए, अभी 60% का मोटा मोटा गैप है, जिसको हम ये नेक्स्ट वाले प्लान से कवर करेंगे और फिर वो रिप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। अभिषेक कुमार जी। नमस्कार सर, मैं अभिषेक कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ जी सर। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कितना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। सर आपने जैसे कि बताया कि टोटल 8 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, इंडियन, स्टेट, अर्बन, रूरल। तो रूरल में आते हैं सरपंच या मुखिया जो ग्रामीण में आते हैं। तो सर गांधी जी का एक मॉडल था ग्राम सभा और अर्थात स्वराज। तो सर हम ये स्वराज और ये सुशासन को सर आईसीटी सर कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं सर? इस पे सर कुछ फिर से बताओ, फिर से क्या सर, आईटी से? ग्राम स्वराज या स्वराज सर गांधी जी का एक सपना था, महात्मा गांधी जी का। हाँ। और जो हम लोग आईसीटी का यूज करके सर कैसे ग्रामीण जनता को अवेयर कर सकते हैं? भैया आज के डेट में यार सब आईसीटी ही तो हो रहा है। दिक्कत क्या है, देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश के गवर्नेंस में, जो मेरा पर्सनल मत है, इट इज नॉट ऑफिशियल मत, मेरा पर्सनल है। हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर के बजाय धीरे धीरे दूसरे पर निर्भर हो गए। क्या पहले 30 साल पहले जब हम क्या करते थे, घर बनाते थे अपने रहने के लिए, खाने की व्यवस्था करते थे, पीने के लिए कुआं, तालाब और नदी की व्यवस्था करते थे। पानी के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर थे। पिछले 30 साल में कुछ कहानी ऐसी हो गई, गिव एंड टेक हो गया, मैं दूं आप खाओ, हर आदमी देखता रहता कि हमें कुछ मिल जाए। ये जो सोच गवर्नेंस में बदली है, ये इसको उलटना है। ये उल्टेगा कब? यही जो हम लोग करेंगे। हमें आत्मनिर्भर की जो आजकल बात चल रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर गिव टेक से कहीं आत्मनिर्भर, खुद कमाओ खुद खाओ तब तो वो आत्मनिर्भर है। और अभिषेक ने दिया और मैंने खाया तो आत्मनिर्भर तो हुआ नहीं ना। तो ये जो लेने और देने कि वो फलाने स्कॉलरशिप देंगे, फलाने जूता देंगे, फलाने ये देंगे, फलाने वो देंगे और हम उसको खाएंगे, ये वाला जो सोच है या जो ये प्रोसेस है, मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको बदलने की जरूरत है। और जब तक ये बदलेगा नहीं, ये गिव टेक वाला गवर्नेंस, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो होगा नहीं। तो
मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा इस मुद्दे पर सोचिएगा। मैंने फोन नंबर दिया है, आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। देन वी विल डिस्कस एट लेंथ। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रियंका राजपूत जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। Firstly, thank you so much, Abhishek sir and Hiralal sir. Abhishek sir जी ने तो मुझे personally भी पढ़ाया है। Okay, my question is, digitalization is very good initiative. लेकिन हमारे पास गाँव में, मतलब गाँव के नहीं, नागालैंड वगैरह जो पिछड़े हुए स्टेट्स है हमारे देश के, वहाँ पे तो लोग नहीं पहुँचते, तो वहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे? मतलब हम उन्हें कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं? देखो ठीक है आपकी बात। मंगल ग्रह पे लोग पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है? हाँ या ना? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यस सर। पहुंचा ना? अभी 2 साल पहले नहीं पहुंचा, आज पहुंच गया। इंतजार करो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक गुब्बारा रख करके उससे इंटरनेट देने का बहुत सारे। अरे एक चीज सुना होगा, कारलेस ड्राइविंग, क्या ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी। देखते जाओ। बिल्कुल सर। लाइक वाइज जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कभी कुछ ऐसे कुछ कहावत है ना, मंगल तक हम पहुंच गए हैं, अभी 1 साल पहले नहीं पहुंचे। आप जिस जगह की बात कर रही हो, नागालैंड और सिक्किम, जहां कोई नहीं जाता, सब जाएंगे और सब पहुंचेंगे। इस दिशा में बहुत ही इनोवेशन हो रहा। मैं 2 साल पहले डिजिटल डिवाइड पे स्टडी कर रहा था, तब मुझे पता लगा कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वाले जहां पे डिजिटल नहीं पहुंच रहा है, कुछ गुब्बारे के मार्फत कुछ एक नया गुब्बारा बना रहे हैं, उस पर से वो रिफ्लेक्ट करा करके वो इंटरनेट देंगे। काफी सक्सेस। और इस बात के को सिद्ध करने में कारलेस ड्राइवर, वो बहुत सारे सागर में वो बड़ी बड़ी जहाज समुद्र वाली में ड्राइवर नहीं है, बस लगा और टन देना पहुंचा देता है। किधर एक तरफ से डाला दूसरी तरफ पहुंच गया। तो आप चिंता मत करो। जो आप कह रही हो, हाँ आज के डेट में, अभी 2 साल पहले कोई कह सकता था कि हम मंगल पे जा करके वो पैर झंडा गाड़ के आएंगे? आज गाड़ दिए। थोड़ा समय लगेगा, बट बहुत जबरदस्त इनोवेशन एंड प्रोग्रेस इंटरनेट में हो रही है। इस दिशा में भी काम है। पढ़ना, इस चीज को पढ़ना, ये आनकी डिजिटल डिवाइड पे पढ़ना तो मिल जाएगा कि जहाँ डिजिटल डिवाइड, डिजिटल नहीं है रिमोट एरिया में, व्हाट रिसर्च इज गोइंग ऑन। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हम केवल 5 मिनट और क्वेश्चन लेंगे बस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जो भी क्वेश्चंस को आपने आंसर दिए हैं, तो सर थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन है, खाली आइडिया अच्छे हैं नहीं तो आपको पहले व्यक्तिगत बात हो गई। नहीं, आपको कहना चाहिए आप भी अच्छे हैं, आपका आइडिया भी अच्छा है, वो आंसर भी अच्छा। चलिए एनीवे, जस्ट क्रिएटिंग। चलिए ठीक है सर। सर क्वेश्चन ये मतलब ये था कि अभी जो मीन्स ये प्रवासी, ये जो मजदूर आए हैं, इनको देखकर जो भी अभी ये रियल इमेज सबके सामने आई है और इनका जो गांव की ओर पलायन हुआ है, और हम दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें अपना सुशासन किस तरह काम करेगा या किस तरह से इनको मैनेज करेगा? देखो, जब कोई आफत आती है, देखिए ये कोई नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं जो सिचुएशन है, और ये भी नहीं है कि कोई एक छोटे पोर्शन में है। इट इज ए ग्लोबल फिनोमेना। आप, मैं न्यूज सुबह पढ़ रहा था, 188 कंट्री इससे प्रभावित हैं। ठीक है, मतलब पूरा ग्लोबल प्रभावित है। जब एक छोटा सा तूफान आ जाता है 1 घंटे के लिए, तो सारे बिजली खंभे सब गोल, 3 दिन तक लाइट नहीं, पानी नहीं, दिस। और जब इतना बड़ा पैंडेमिक है, ठीक है, तो ये जो आप बात कह रही हो, इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। हमें जो परिस्थितियां हैं उसी में रास्ते बनाने हैं। और हर सरकार, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया। ठीक है, हम लोग फेयर प्राइस साफ, जो हम किसी को एक आदमी को देते थे, अब हम वो जो NRLM का सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसको देने जा रहे हैं, पहले नहीं देते थे। तो इस तरह से हम लोग अपने चीजों को इस तरह से चेंज कर रहे हैं जिससे कि टू मिटिगेट
टू रिड्यूस द हार्डशिप्स। और ये कोई रेडीमेड नहीं है, जैसे जैसे जो चीज सामने आ रही है, और इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा कंट्री है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, इसमें ये दिक्कतें आएंगी। देखिए आप ये ध्यान करिए, जब शुरुआती 2 महीना पहले क्या भय था, क्या फियर साइकोसिस थी, आज आप ही ने मास्क नहीं लगाया है, आपकी फियर साइकोसिस गायब है, हमारे ने नहीं लगाया है। तो चीजें धीरे धीरे सेटल होती हैं। और ये जो आपका, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिकली जो चीजें टूटी हैं, बैकवर्ड लिंकेज टूटे हैं और फॉरवर्ड लिंकेज टूटे हैं। जो पैदा हो गया वो बिक नहीं रहा है, तो आगे बिक नहीं रहा तो फॉरवर्ड लिंकेज टूट गए। अब जब बिकेगा नहीं तो पीछे ना इनपुट मिलेगा ना धन रहेगा, पैदा कैसे? तो देखो ये क्राइसिस तो अपने आप में एक चैलेंज है, और इस चैलेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। क्या? थोड़ा खाने में कंजूसी, पहनने में कंजूसी, आदत में कंजूसी। कंजूसी मतलब कोई हार्डशिप से नहीं है, मतलब वो जैसा देश वैसा भेष। कोरोना ने बताया कि थोड़ा बहुत तेज हम लोग बहुत दौड़ रहे थे, कहा थोड़ा स्पीड कम करो। क्यों? हम लोगों ने नेचर के साथ अन्याय किया, जल और जंगल के साथ एट्रोसिटीज की। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, ये नेचुरल काल है, सुधर जाओ। हम लोगों ने कुआं, तालाब, नदी को पाट दिया, जंगलों को काट दिया। बिना जल के और हवा के कोई चीज होती है? तो ये नेचुरल काल है, ये इज माय पर्सनल व्यू। तो ये जो आप कह रही हो, आपकी चिंता बहुत दुरुस्त है। मैं रोज इस पर सोचता हूँ, मेरे पास रोज लोग आते हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, गहराई समझने की कोशिश करता हूँ। आने वाला 6 माह रियली, जो अभी ये 3 माह बीता, ये चैलेंज नहीं था, अब चैलेंज शुरू हुआ। क्यों? हमारे पास जितना बचत था वो खा लिए, जो हमारे अंदर ऊर्जा जोश था वो खत्म हो गया, और कोरोना अपना पैर बहुत तेजी से दौड़ने लगा। तो 3 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस टुगेदर वी हैव टू फेस। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, घबराइए मत आप, सब झेला जाएगा, सब ठीक होगा। कितनी हवाएं आई, कितनी तूफानें आई, चली गई, ये भी चला जाएगा। कोरोना का डर नहीं है, अब कंडीशंस का डर और कुछ नहीं। हाँ, कंडीशन भी संभलेगा, वैसे जैसी समय होती है वैसे हम लोग बदल लेंगे अपने, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन? अभिषेक? Abhishek, I think there are no more questions. Abhishek? हेलो? हाँ सर। लगता है और कोई क्वेश्चंस है नहीं। लेट्स Yes, we should close it. ठीक है, तो मैं एक अतुल बार जी से बस आपका नंबर ब्रीफ कर देते हैं फिर से एक बार प्लीज। हाँ, 95-329-98213। आप फोन मिलाओगे तो हो सकता मैं ना उठाऊं, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप, क्योंकि मैं बैठक में थोड़ा, व्हाट्सएप करोगे, आई रिप्लाई यू। अगर नहीं उठा जी सर, धन्यवाद तो सर। नाराज मत होइएगा कि वहां तो भाषण अच्छा दे रहे थे, फोन उठा नहीं, आप आपके साथ रह के तो अभी हैप्पी होना है, नाराजगी की तो बात ही नहीं। हाँ, सर आपसे कैसे मिल सकते हैं सर? कैसे मिल तो रहे हो यार, अब कैसे मिल नहीं रहे हो? नहीं सर, अब सर आपसे आज मिलके बहुत ही हाईली इंस्पिरेशन मिली, और हम चाहते हैं सर, मैं एक्चुअली हम फ्रॉम यूपी सहारनपुर, और अभी मैं इंदौर में हूँ सर। तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, और कुछ सोसाइटी के लिए और कुछ ह्यूमैनिटी के लिए मैं करना चाहता हूँ सर। देखिए, मेरा एक तरीका है, मुझसे तो बहुत हमको एक लोग, लीडरशिप की जरूरत है सर, जो लीडरशिप आप दे दोगे वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए पर्सनली सर। देखिए हमारी एक स्टाइल है, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज गिव मी 1 पेज कॉन्सेप्ट नो। मेरी जिंदगी का हिस्सा, मैं पूरा काम 1 पेज में करता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें एक हमारे कॉलम फिक्स है, क्रम, सीरियल नंबर, क्या क्या करेंगे, वो कौन कौन करेगा और कब तक करेगा। इसमें आप ये कोई भी अगर आपके मन में कोई आइडिया हो, कोई बात, तो 1 पेज का कॉन्सेप्ट नोट भेजिए, आई विल गो थ्रू इट। क्योंकि 1 पेज से ज्यादा मेरे पास फुर्सत, तो 1 पेज से ज्यादा लिख दोगे तो लागू ही नहीं होगा, ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा। जितना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उतना बड़ा फेल्योर। क्या
अगर वो 5 किलो है, 10 किलो सही। का, बहुत बढ़िया बाइंडिंग, वो बनाया ही इसीलिए जाता, ना वो समझे ना आप समझो, बस वो कागज में रहा है, हर साल प्रोजेक्ट बनता रहा है। तो 1 पेजर एसओपी बनाइए, मुझे भेजिए, फिर हम लोग डिस्कस करके और फिर हम लोग मिल लेंगे। मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं यहाँ बुला सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना है, तो वर्चुअली हम लोग पहले पका लें फिर मिलेंगे, पहले पका लें तब बैठ के खिचड़ी खाएंगे। थैंक यू सर। तो मैं अब इसरा के प्रशासक अतुल सोनकार जी से निवेदन करूंगा कि अभी यहाँ पर उपस्थित होकर और जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हमारे मुख्य अतिथि हैं उन सबका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद अभिषेक जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर निदेशक डॉक्टर हीरालाल जी, इसरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तारकनाथ शाह जी तथा इसरा के महाप्रबंधक श्री अभिषेक अग्रवाल जी तथा इस सभा में भारत के विभिन्न राज्यों से एकत्रित हुए सभी महानुभाव, आप सभी का मैं इसरा की ओर से हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। आज डॉक्टर हीरालाल जी ने अपने अपार ज्ञान तथा अनुभव के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रशासन में किस प्रकार उपयोग होता है तथा इसका महत्ता का हम सभी को बोध कराया है। मैं इसरा की ओर से उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को देकर हम सभी को कृतज्ञ किया है तथा मैं इसरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तारकनाथ शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना सफल निर्देशन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन किया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। तथा मैं इसरा के महाप्रबंधक श्री अभिषेक अग्रवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने सफल नेतृत्व का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी खासी भूमिका अदा की है। इसी के साथ मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा अपने सटीक मार्गदर्शन के बलबूते हम सभी को दिशा प्रदान करते हैं। तथा सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मैं इसरा की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इसरा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है तथा आगे भी करता रहेगा। इसरा की वेबसाइट अब लगभग तैयार हो चुकी है। आप जल्दी ही इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, आप उन योजनाओं के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं तथा आप वेबसाइट से अप्लाई भी कर सकेंगे। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार, थैंक यू। सभी साथ में जुड़े इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। हीरालाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद सर। हीरालाल सर, धन्यवाद सर। सभी का धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे। अभिषेक जी ऐसे कोर्स करवाते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा आज। नहीं, अब लगातार हर वीक हमारे कोर्स होते रहेंगे। जी जी जी, थैंक नहीं यू। अभिषेक सुनो, ऐसा करो, इसको टॉपिक वाइज, जैसे वाटर एक बहुत अच्छा इशू, उस पर भी एक दिन हुआ कर सकते हैं। मैं न्यूट्रिशन एक टॉपिक है, हमें भी नहीं पता था। मैं न्यूट्रिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे मेरा बहुत अच्छा काम है बांदा का। हमने नींव से कमाई कैसे करो, दुकानदार कैसे महिलाओं को बनाओ, उनको Yes, sir. बहुत सारे काम किए, उनको काम है, तो दैट वी कैन, मतलब वो किया जा सकता है। लेट अस सी। ठीक है सर, ओके। So thank you here, sir ji. Thank you very much, and we will be in touch, sir. Thank you for your time. थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक्स ऑल ऑफ, थैंक्स, बाय बाय।